Okay, through this video, I'm going to give you feedback on your presentations and the assignments that you submitted. This is by Mohammed Asad. Definitely, this is AI generated. यहाँ पर lines लगी हुई हैं, तो ये part आपने खुद नहीं किया और ये भी properly आपने इसे explain नहीं किया. As far as your speech is concerned, speech में वो सारे markers missing हैं जो आपने लगाने थे, right? There's nothing to evaluate because it's copy pasted. There was eye contact, but you tried your best, but it was not sufficient enough. No important information was shared when you were presenting, and you need to work on your pronunciation. And you must know how to present in front of an audience because जो आप present कर रहे थे वो इतना खातर खा effective नहीं था. Now this is मोहम्मद माजिन अली. और असद आपका टाइम बताना मैं भूली बेटा, आपने सिर्फ 1 मिनट लिया जबकि आपको 3 मिनट करने थे. माजिन, एज फार एज योर असाइनमेंट इज़ कंसर्न, एक तो ये पहली असाइनमेंट है नहीं, दूसरा फॉर्मेट में इशू है. यू टुक 1 minute and 28 seconds. Execution was poor. You pronounced words fine, but I like the fact that you brought some handout second copy with you in order to present, but प्रेजेंटेशन नहीं थी, ये स्पीच थी जिसमें आपने कहीं से देख के पढ़ना ही नहीं था. तो आई कॉन्ट एवेल्यूएट बिकॉज इट वॉज टोटली स्क्रिप्ट रीडिंग. एज फार एज दी अदर थिंग इज़ कंसर्न जो आपने करके लानी थी, ये तो आपकी स्पीच होगी. जो दूसरा पार्ट था आपके असाइनमेंट का ये. अब यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश की है बिकॉज एंड मे बी आई अंडरस्टैंड डिफरेंट आइडियाज. अब ये कॉपी पेस्टेड है ना बेटा, कॉपी पेस्टेड. अब बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग लिखा हुआ है. क्रैकिंग ओपन अ बुक इज़ लाइक स्टेपिंग इनटू अ मैजिकल पोर्टल, यू कैन ट्रेवल. हम सेल्फ हेल्प बुक तो नहीं लिख रहे ना. सो क्लैरिटी इशू है. ठीक है, ये आपकी स्पीच है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग पे, और ये आपने डेफिनेशन ऑफ स्पीच की बात की है. इसमें भी वो देखें बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल लैंग्वेज है. ओके, इमेजिन योर फ्रेंड, इट्स poorly explained, and of course it is AI generated, so there's nothing to evaluate. Useless assignment, I would rather call it. Presentation bhi theek nahi thi. Then we have Mohammed Abu Bakr. You took 3 minutes and 19 seconds, and you had a page with preparation, and of course you made eye contact. You tried your best, but there was some repetition. जब हम कुछ बोलते हुए उसको रिपीट करते हैं तो हमें ऐसा सुनाई देता है एज इफ हमने उसको ज़ुबानी याद किया हुआ है, तो वो लग रहा था. You started like a speech and then started reading script. However, you did sound prepared. However, ऑडियंस नहीं सुन रही थी, तो विच मीन्स के क्लैरिटी नहीं थी. कॉपी पेस्टेड है, और उसके अलावा पॉइंट्स वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड properly when you were giving your speech. Other than that, the other question that you were supposed to do speech and types of speeches. अब देखिए आपने informative speech के बारे में लिखा है. A zoo guide gives an informative speech on a group of people to a group of people, educating them on a zoo animal using various statistical facts or historical information. अच्छा, इसमें कॉमा आप डालते तो क्लैरिटी आती. खैर, अगेन टाइप्स जो 2 मैंने आपको बताई थी वो तो आपने लिखी. तीसरी आपने स्पीचेस फॉर स्पेशल ओकेजन्स लिखी, लेकिन देन देयर इज़ नथिंग एल्स अबाउट इट, सो इट्स इनकम्प्लीट एंड ऑफ कोर्स partially copy pasted. I don't see your own input in it. Then Raza Mehdi, you took 2 minutes and 20 seconds. All the time you were laughing, you were very non-serious. You hid behind the podium. There was a poor start, no clarity, phrase reading, bullet points were there, nothing said or explained. You just stood there like, I'm not sure what was that. Poorly executed. You have confidence, but it's poorly and wrongly placed in wrong places. ठीक है, I would really rather see you confident in your presentation other than class में बाकी बदतमीज़ियों से. अच्छा बेटा, कि आप अपना जितनी भी एनर्जी है, you must put that energy into learning something, right? Your write-up is not like a speech. आपने 2.5 मिनट तकरीबन लिए, लेकिन उसमें कुछ कहा नहीं. अब ये देखिए हाउ कैजुअली आपने एक चिट लिख कर मुझे दे दी. सो इट्स वेरी बैडली अटेम्प्टेड. उसके बाद ये भी ऑफ कोर्स AI जनरेटेड है, आपने खुद नहीं लिखा.
Then Aleem is there, copy pasted. You refuse to present. As far as types of information speech is concerned, आपने informative speech लिखी, persuasive लिखी, motivational लिखी, आपने काफ़ी सारी लिखी. I am sure you don't even know how to pronounce this word, exemplarinous. ठीक है, तो ये सारी आपने कॉपी पेस्टेड लिखी हैं. और ये जो सिंबल्स हैं बेटा, ये नहीं बनाते एकेडमिक राइटिंग में, अवॉइड देम. फिर आपने एग्जांपल्स अलग से देखी, लेकिन ये सर्टनली देख रहे हैं, सर्टनली हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ स्पीच. डेफिनेटली इट्स एआई जनरेटेड, सो ऑल इन ऑल यूजलेस. ठीक है. उसके बाद बाबर स्टार्टेड विद कॉन्फिडेंस, बट देन ही स्विच टू उर्दू. Evaluation cannot be justified. You took 1 minute and 23 seconds only. Speech is copy pasted, of course. Your voice was shaky. You were underconfident. You forgot the first point, but uh, in the end there was no ending, and podium baja kar aap wahan se chale gaye, which was not the decorum of class. फिर अगर हम ये बात करें तो इंफॉर्मेटिव स्पीच के बारे में एग्जांपल लिखा हुआ है. यू आर प्रोवाइडिंग स्पीच ऑन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, एज इन दैट स्पीच योर गोल हैज़ टू बी providing information on different events that happened, why happened and how it happened and etc. ठीक है, तो ये एग्जांपल आपने ठीक लिखी है इसकी, और आई नो इट्स नॉट जो आपने ख़ुद लिखी है. देखिए, परसुएसिव स्पीच एंड स्पेशल ओकेजन, ये आपने एआई जनरेटेड मुझे सबमिट करवाया है. एज़ फार एज़ योर स्पीच इज़ कंसर्न्ड, वही बात है कि आपने ये, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट स्कूल. बहुत सारे पॉइंट्स आपने लिखे हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो इट वाज नॉट अ गुड अटेम्प्ट. ओके, ये हमारे पास हैं जी मोहम्मद हारून. ही रिफ्यूज टू प्रेजेंट एंड थ्रू आउट द क्लास ही वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास एज वेल. देन अगेन वी हैव मोहम्मद अब्दुल्ला रज़ा. यू ऑल्सो रिफ्यूज टू प्रेजेंट. एंड देन वी हैव एहसान मुख्तार या एहसन मुख्तार समथिंग. poorly submitted. I mean, I want you to look at the submission. स्टेपलर मेरे पास था इसलिए उन्होंने कहीं से स्टेपल कर लिया, वरना तो आई एम श्योर वो मुझे जैसे भी सबमिट करवाते. जो भी है एहसन बेटा, दिस इज़ योर स्ट्राइक नंबर 335 आई बिलीव, बिकॉज क्लास बिहेवियर भी आपका ठीक नहीं है, विच इज़ इरेलीवेंट फॉर दिस सबमिशन ऑफ कोर्स. But other than that, what are you trying to do? I'm not sure, beta. There was only script reading, so there's nothing to evaluate. Rimsha, you presented for 59 seconds, so there's nothing to evaluate. Mohammad Musa, you took 2 minutes. There was no audience hold. कोई आपको सुनना ही नहीं जा रहा था, जैसे आप ऑडियंस में बैठ के किसी को सुनते नहीं हैं. Nobody was listening to you as well. There's nothing to evaluate because you were reading from the mobile, and even that देख के वाली reading was so poorly done. I mean, you can't even read while looking at the mobile. Then Askaran came, nothing to evaluate. You took 1 minute and 43 seconds, but it was mobile reading. Then Dua came. Dua had a good start, stable, points were carefully crafted, eye contact was made. However, you did not manage time. ठीक है, 1 minute and 30 seconds only. फिर आसिफ ने आपको पता ही है क्या किया, 1 minute and 16 seconds में. You presented nothing, but I would like you to improve your body language. I mean, be confident in the right place, right? You could not execute, and of course it's copy pasted. You can't write like this. I know how you write. And then protest speech, ये आपने कोई नई टाइप निकाली है और उसकी एग्जाम्पल लिखी है, बट इट इज़ ऑल्सो कॉपी पेस्टेड. फिर हमारे पास हैं हुसैन खालिद. Hasnan Khalid, you were not prepared. Poor argumentation, no audience hold. You wasted a lot of time, that is 2 minutes and 35 seconds. स्क्रिप्ट रीडिंग थी, कोई वैल्यूएशन नहीं थी. स्पीच नॉट रिटन वेल. अब आप अपना ये पहला पार्ट देखें, जैसे आपने सब एग्जाम्पल दी है. ठीक है, AI जनरेटेड एंड अगेन AI जनरेटेड. आपका टॉपिक बहुत अच्छा था, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट इट वॉज पुअरली एग्जीक्यूटेड. दैन मोहम्मद बिलाल, नथिंग टू बी वैल्यूएटेड, नो वन वॉज लिसनिंग. और आपने बहुत तेज़ी से पढ़ने की कोशिश की, और देखिए आपके असाइनमेंट में मिस्टेक्स भी हैं, और आप जल्दी जल्दी पढ़ कर वहाँ से निकल गए. बाकी ये भी इतना कोई ख़ास आपने नहीं लिखा, तो पुअर एग्जीक्यूशन बेटा. काजी वॉज एब्सेंट, और उन्होंने अपनी असाइनमेंट कहीं से भिजवा दी थी. फिर सुहेल असगर, यू रिफ्यूज़ टू प्रेजेंट. उसके बाद शाहजेब अली, मोबाइल रीडिंग. स्पीच जो है वो पुअरली लिखी हुई है, 2 मिनट आपने लिए, और आपने सीखना है कि वर्ड का साइज़ मतलब क्या रखते हैं व्हेन सबमिटिंग. एंड व्हाट इज़ दिस? ऑफ कोर्स दिस इज़ ChatGPT generated, I can see.
But chilling, I have nothing to say to you. Then Halima took 2 minutes and 30 seconds. Your pronunciation needs to be corrected. आप precious पढ़ रही थी, it's precious. 3 मिनट की विंडो में बेटा जो वर्ड्स आने थे उसकी प्रोनाउंसिएशन आपने ज़रूर देख के आनी थी. आई कॉन्टैक्ट वॉज देयर बट नथिंग टू वैल्यूएट एज इट वॉज मोस्टली स्क्रिप्ट रीडिंग. हमना ईमान आपका टॉपिक चेंज हो गया था बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम, तो कुछ मेरे पास है नहीं वैल्यूएट करने का. मुज्तबा बट एक तो सबमिशन देखें आप अपनी किस तरह से आपने किया है. इट्स बैडली सबमिटेड. आपने 2 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स लिए. यू वर लाउड एंड क्लियर. नाइस स्टार्ट. ऑडियंस होल्ड वॉज देयर. अ लिटिल बिट ऑफ स्क्रिप्ट रीडिंग वॉज देयर. वेरी क्लियर. फिर आप कहीं पे रुक गए, डर गए और फिर आपने कंटिन्यू किया. बाकी पॉइंट्स आपके और स्ट्रेंथन हो सकते थे. फिर हमारे पास आए मुस्तजाब हैदर. पुअरली रिटन बेटा. आई कॉन्टैक्ट थी लेकिन देयर वाज नो स्क्रिप्ट रीडिंग. ठीक है, सो एज फार एज नो स्क्रिप्ट रीडिंग इज़ कंसर्न वो ठीक था. बाकी जो राइट अप है आपका बहुत बहुत ही बुरा है. ना तो ये स्पीच है और ना ही ये टाइप्स हैं. आई डोंट नो व्हाट यू हैव रिटन. हारिस अली, यू स्टार्टेड वेल. अच्छा, रीडिंग करते हुए हारिस आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है फ्रेजेस बोल रहे हैं, वर्ड्स बोल रहे हैं जो कि सुनने में बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं और सुना नहीं जाता. फिर आपको बहुत सारे वर्ड्स आपने यूज़ किए जो आपको खुद ही नहीं पता. जैसे रेजोनेंस आप कह रहे थे जबकि लिखा हुआ रेजिलियंस था. सो कॉपी पेस्ट भी करके आए तो एटलीस्ट उसको पढ़ लेना चाहिए. नहीं, सो इट वॉज पुअरली एग्जीक्यूटेड. एक तो आप लेट आते हैं. वेरी कैजुअल बिहेवियर हारिस. स्क्रिप्ट रीडिंग, कॉपी पेस्टेड, नथिंग टू इवैल्यूएट. शहीर हुसैन, बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है बेटा. फिलर्स मस्ट बी रिड्यूस्ड. लैंग्वेज फिलर्स क्या होते हैं जिसमें हम ओके दैट इस तरह के वर्ड्स को बाबा यूज़ करते हैं. टू शॉर्ट आपने जो लिखा हुआ है ये देखें. और कॉपी पेस्टेड है ऑफ कोर्स. नथिंग टू इवैल्यूएट. Then we have Zen. Zen took 1 minute and 24 seconds. There was no script reading. Again, ये copy pasted है, AI generated है. You were a little nervous, but very refreshing because you were the only one after Dua, I believe, who made sense. जिसे सुनने को दिल कर रहा था. However, points could be strengthened. और आपने यहाँ पर बाद में ही बेशक लेकिन हेलो माय नेम इज़ जैन हसन आपने ऐड किया, तो आई कैन सी दैट यू आर सीरियस अबाउट दिस सब्जेक्ट, सो दैट्स गुड. देन शहीर यासीन, यू वर लाउड एंड क्लियर बट यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. अब बहुत तेज़ बोल रहे थे बेटा और पूरा पोडियम पे तकरीबन लेट ही गए थे, तो पोडियम को यूज़ करना सीखें. डोंट हाइड बिहाइंड इट. राइट, repetitions were there. Script reading was there. You took 1 minute and 50 seconds. और ऑफ कोर्स टाइप्स ऑफ स्पीचेस वाला क्वेश्चन देखें आपने कैसे अटैम्प्ट किया. तो ऑल इन ऑल सबमिशन ठीक नहीं है. फिर दानियाल आए, लाउड एंड क्लियर. वेरी ग्रामेटिकली प्रॉब्लमेटिक. बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी. मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपने मेंशन किया लेकिन फिर आगे हमें बताते भी तो सही ना कि उसने क्या किया है. ये GPT जनरेटेड है. ये देखें बॉक्सेस बने हुए, तो क्यों पैसे वेस्ट करने. हेलो एवरीवन. ठीक है, तो ये आपने मुझे जो भी जमा करवाया, नथिंग टू वैल्यूएट है. ज़रकमीन, मोबाइल रीडिंग, नथिंग देयर. कुछ सुनने का था नहीं बेटा जिसके लिए मैं इवैल्यूएशन आपको दूँ. हसनात फ़ारूक, एक्स्ट्रा टाइम वाज गिवन फॉर सबमिशन ऑफ A3. ठीक है. स्क्रिप्ट रेड और वो भी बहुत बुरी तरह से, और बाकी ये कॉपी पेस्टेड है और इट्स नॉट अ गुड अटेम्प्ट. नोफल अयाज, केओटिक को क्या बोल रहे थे आप ही को पता है. वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड लुक एट दीज. आई मीन you guys really need to learn how to submit a document. I refused to present. Then Harish Shiraz, nobody was listening, so and there was nothing to evaluate because you said nothing important. Ibrahim, it was poorly executed बेटा. पहले लाउड एंड क्लियर थे लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए. 2 मिनट लिए लेकिन आपको कुछ सुन नहीं रहा था, विच मीन्स कि इट वॉज नॉट अ गुड अटेम्प्ट. फिर 1 मिनट लिया. अब्दुल्ला हारून ने स्क्रिप्ट रीडिंग, नथिंग टू वैल्यूएट, क्योंकि इस पर मैं आपको वैल्यूएशन दे नहीं सकती. फिर एहसन खालिद ने प्रोनाउंसिएशन पे काम करें बेटा, आई कांटेक्ट पे काम करें, बाकी नथिंग टू एवैल्यूएट. ये कौन है? ये है अहमद जहान ज़ेब. इन्होंने ये सबमिशन 850 पे की. लेट आए क्लास में. स्क्रिप्ट रीडिंग, ऑडियंस नहीं सुन रही. मार्जिनलाइज्ड
अपने स्पीच में लिखा तो हुआ है लेकिन इनको पता नहीं था ऐसे प्रोनाउंस कैसे करना है, पता नहीं क्या प्रोनाउंस कर रहे थे, टॉक्सिसिटी बोलना नहीं आ रहा था। तो जो भी आपने लिखा है बेटा, यू आर अनएबल टू जस्टिफाई इट, सो पुअरली एग्जीक्यूटेड।